دوستو، شب برات کی رات جو ہے یہ عبادت کرنے کی رات ہے. حدیثوں کا خلاصہ جب ہم نکالتے ہیں اور تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1، رات میں عبادت. نمبر 2، دن میں روزہ رکھنا. اور نمبر 3، قبرستان جانا. یہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں. اب یہ تینوں عبادتیں بھی اگر کرنی ہے تو اس کا بہت زیادہ اہتمام اور التزام اور اس کو ضروری سمجھنا، اجتماعی طور پر کرنا اور نہ کرنے والوں کو لعن طعن کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بعض حضرات اس رات میں شور شرابہ، ہنگامہ، چائے نوشی، ناشتہ وغیرہ، اور اللہ تعالی رحم کرے ہمارے نوجوانوں پر، بعض نوجوان پٹاخہ چھوڑنے میں اور پتہ نہیں کیسی کیسی بدعات اور خرافات میں اس رات کو گزارتے ہیں. آئیے میں کچھ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے. بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو اس رات میں اجتماعی عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں. ان کا یہ ذہن اور مزاج بنا ہوا ہے اور ان کا تصور بنا ہوا ہے کہ اس رات میں مسجد میں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اجتماعی طور پر خوب خوشی اور انبساط کے ساتھ ہم عبادت کریں گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ ہی عبادت کرنی ہے، ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اس کا اہتمام اور التزام ضرور کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس رات میں جو بھی عبادتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ سب نوافل کے درجے کی عبادتیں ہیں. اور نوافل میں اصول یہ ہے کہ انفرادیت ہونی چاہیے. الگ الگ نفل نماز ہے، الگ الگ، اسی وجہ سے نفل نماز کی آپ جماعت نہیں کر سکتے، الگ الگ پڑھنا ہے. نفلی عبادتیں تنہائی میں گوشہ نشی ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا کر کے یہ سب عبادتیں کی جاتی ہیں، نہ کہ اجتماعیت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر کے یا اس طور پر ہم عبادت کریں کہ لوگ دیکھیں، ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں، دوسرے لوگ ہم کو دیکھیں. جی نہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو ہیں وہ تنہائی کے ساتھ کی جائیں، گوشہ نشین ہو کر کے کیا جائے، گھر کے کسی کمرے اور کونے میں بیٹھ کر کے کیا جائے اور اللہ سے لو لگایا جائے. تو اس سلسلے میں دیکھیے، شب برات کی حقیقت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے شب برات کی حقیقت. اس میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح کی نوافل کی عبادتوں کے سلسلے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہیں، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے. لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ نفل کے بارے میں تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو ثواب کیا ملے گا؟ الٹا گناہ ملے گا. یہ شب برات کی حقیقت صفحہ نمبر 7 پر یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں. اب آ جائیے اسی کتاب پر مولانا
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम सफ़ा नंबर 10 पर लिखते हैं, ये फजीलत वाली रातें शोर व शगब की रातें नहीं हैं, मेले ठेले की रातें नहीं, ये इज्तिमा की रातें नहीं, बल्कि ये रातें इसलिए हैं कि गोशाए तन्हाई में बैठकर तुम अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लो और तुम्हारे और उसके दरमियान कोई हायल ना हो। मजीद आगे लिखते हैं, लोग ये उज्र करते हैं कि अगर तन्हाई में इबादत करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, मस्जिद में शबीना और रोशनी होती है और एक जम्मे गफीर होता है जिसकी वजह से नींद पर काबू पाने में आसानी होती है। अरे इस बात पर यकीन करो कि अगर तुम्हें चंद लम्हात गोशे तन्हाई में अल्लाह ताला से हम कलाम होने के मयस्सर आ गए तो वो चंद लम्हात उस सारी रात से बदर्रहा बेहतर हैं जो तुमने मेले में गुजारी, इसलिए कि तन्हाई में जो वक्त गुजरा वो सुन्नत के मुताबिक गुजरा और मेले में जो वक्त गुजरा वो खिलाफे सुन्नत गुजरा। वो रात इतनी कीमती नहीं जितने वो लम्हात कीमती हैं जो आपने इखलास के साथ रिया के बगैर गोशे तन्हाई में गुजार लिए। ये मैं दलीलें दे रहा हूँ उन हजरात को जो ये समझते हैं कि इस रात में इज्तिमाई तौर पर भी इबादत कर लें, एहतमाम ज़रा कर लें, एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग इबादत कर लें तो हरज क्या है, क्या दिक्कत है। तो देखिए फुक़ाहे किराम और उलमाए किराम क्या लिखते हैं इस सिलसिले में। ये मैंने फतवा नोट किया है, ये फतवा बिन्नौरी टाउन का है। इन्होंने शब बारात से मुताल्लिक जो फतवा सादिर किया है वो लंबा चौड़ा फतवा है। उसमें एक जगह इन्होंने लिखा नोट, उसमें क्या लिखा है, इस रात में बक़द्रे तौफीक इनफिरादी इबादत करनी चाहिए, लिहाजा इज्तिमाई इबादतों से हत्तल इम्कान अपने आप को दूर रखे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में इज्तिमाई तौर पर कोई इबादत करना साबित नहीं है। ये एक किताब है माह शाबान के फ़ज़ाइल व आमाल, इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद सलमान साहब। देखिए ये क्या लिखते हैं, शब बारात हो या कोई भी मुबारक रात, मकसद उससे ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ यकसुई और दिलजमाई के साथ मुतवज्जह हो, और जाहिर है कि यह मकसद इनफिरादी इबादत के ज़रिए ही हासिल हो सकता है। नीज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके बाद सहाबा व असलाफ से भी इज्तिमाई तौर पर मुबारक रातों में इबादत करना मनक़ूल नहीं। इसके अलावा इज्तिमाई तौर पर जो मसाजिद में इबादत की शक्लें कायम की जाती हैं वो कई बिदआत और खुराफात का मजमुआ बन जाती हैं, इसलिए इनफिरादी तौर पर जितना हो सके इबादत करना चाहिए। अब ये मेरे पास है हाथ में माह शाबान और शब बारात, किताब का नाम है माह शाबान और शब बारात। इसके मुसन्निफ हैं मुतकल्लिम इस्लाम मुनाजिर इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। वो देखिए एक हेडिंग कायम करते हैं, मुमकिन है साफ दिख न रहा हो, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एक हेडिंग कायम करते हैं अपनी किताब में, हेडिंग और उन्वान ये शब बारात की चंद बिदआतो खुराफात। उसमें गिनाते हैं, नंबर 1 गुस्ल को बाइसे फजीलत और ज़रूरी समझना। नंबर 2 सारी रात जागने को ज़रूरी तसव्वुर करना। नंबर 3 चंद इबादात को मखसूस करना, मसलन सलाते अल्फिया वगैरह। नंबर 4 इनफिरादी इबादत को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करना, जैसे सलातुत तस्बीह वगैरह, इसकी जमात लोग करते हैं। तो मौलाना ने ये उसूल लिख दिया, इनफिरादी इबादत को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करना ये भी बिदअत और खुराफात के जुमरे में आ जाता है। और नंबर 5 मर्दों और औरतों का मखलूत दीनी इज्तिमा करना। नंबर 6 हलवे मांडे ज़रूर पकाना। नंबर 7 आतिशबाजी और चरागां करना। नंबर 8 बेवा खवातीन का अपने मुर्दा खाविंदों के लिए बन सवर कर बैठना। नंबर 9
मुर्दों की अरवाह के आराम के लिए घरों में बिस्तर लगाना। नंबर 10, कब्रिस्तान जाने को जरूरी समझना। जरूरी अगर कोई शख्स समझता है कब्रिस्तान जाने को तो यह भी एक तरह की बिदअत है और खुराफात के जुमरे में आ जाएगा। नंबर 11, एक दूसरे को मुबारकबाद देना। जाहिर है इस रात की मुबारकबाद देना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से मनकूल नहीं है, इसलिए हमें भी इससे बचना चाहिए। कोई मुबारकबाद देने को लाजिम और ज़रूरी समझे और इसका एहतमाम करे तो ये बिदअत है। अब ये मेरे हाथ में है, सबका फोटोकॉपी करके मैंने रख लिया है। ये मेरे हाथ में है, किताब का नाम है अहकाम शाबान। इसके मुसन्निफ हैं बहुत मशहूर मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह खान साहब। इनकी किताब का हवाला फतावाए दारुल उलूम देवबंद में भी मौजूद है। देखिए वो क्या लिखते हैं। हेडिंग कायम करते हैं, मसाजिद में इज्तिमा। क्या लिखते हैं इसके झैल में, इस रात में इबादत करना और इस दिन में रोज़ा। हदीस एक नकल करते हैं कि इस रात में इबादत करो और उसके दिन में रोज़ा रखो, मगर इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना खैरुल कुरून की रिवायत से साबित नहीं, बल्कि वहाँ तो नफली इबादत छुप कर अपने घरों में की जाती थी। इसी वजह से उलमाए किराम व फुक़हाए इज़ाम ने शब बरात, लैलतुल क़द्र, रमज़ान के अशरा अखीरा की रातों, अरफा और ईदैन की रातों में इबादत के लिए मसाजिद में इज्तिमा को मकरूह लिखा है। आगे लिखते हैं, आसिम इब्न नुजैम मिस्री अल बहरुर राइक में फरमाते हैं, इन रातों में से किसी रात में जागने के लिए मस्जिद में जमा होना मकरूह है। आगे लिखते हैं, अल्लामा हसन बिन उमारा, ये मशहूर फकीह गुजरे हैं, उन्होंने नूरुल इज़ाह और उसकी शरह मराकिल फलाह में लिखा है। क्या लिखा है समाअत कीजिए। लिखते हैं कि लेकिन इन रातों में से किसी रात में शब बेदारी के लिए मसाजिद में जमा होना मकरूह है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा अक्सर उलमा ने इसको मुनकर करार दिया है। इन इबारत से वाज़ेह हुआ कि इन रातों में शब बेदारी और इबादत के लिए मसाजिद में जमा होना मुनकर और बुरा है। हाँ, बिला किसी एहतमाम के कोई मस्जिद में आ गया, इक्का दुक्का लोग आ गए, मस्जिद के कोने में बैठ गए, इनफिरादी तौर पर अपनी इबादत कर ली, तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जहाँ इज्तिमाइयत की शक्ल बन रही हो, लोग मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा जमा होना ज़रूरी समझ रहे हो और फिर वहाँ एहतमाम उसका किया जा रहा हो, तो जाहिर है ऐसी सूरत में बिदअत है, ये इससे बचना चाहिए। अब मेरे हाथ में फोटोकॉपी है एक किताब की। बहुत मायनाज मुफ्ती हैं और बहुत बासलाहियत आलिम दीन हैं। इनकी कई किताबें हैं। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब, गालिबन ये रावलपिंडी के हैं। उनकी ये किताब है शाबान व शब बरात के फ़ज़ाइल व अहकाम। उसमें क्या लिखते हैं, इस रात के सिलसिले में लिखते हैं कि शरीयत का मिजाज ये है कि इस रात की इबादत तन्हा अपने अपने घरों में रहते हुए की जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा नफली इबादत उमूमन घर में अदा फरमाया करते थे। बावजूद है कि आपका हुजरा मुबारक बहुत छोटा था, मगर शब बरात बल्कि शब क़द्र वगैरह तक की रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफली इबादत मस्जिद में करना साबित नहीं है। इसी वजह से फुक़हाए किराम ने फजीलत की रातों में मस्जिदों में जमा होने को मकरूह और बिदअत फरमाया है। ये बात लिखी हुई है सफ़ा नंबर 174 पर, और यही तसलसल चला आ रहा है। सफ़ा नंबर 175 पर आप देखें क्या लिखते हैं। बाज़ लोग इकट्ठे होकर जागने और इबादत करने के लिए मुख्तलिफ तावीलें और हीले बहाने बयान करते हैं जो कि शरई नुक्ता नज़र से बेबुनियाद हैं। बाज़ लोग कहा करते हैं कि घरों में शोर होता है, बच्चे रोते हैं, जिसकी वजह से घर में इबादत करने में यकसुई, दिलजमई और खुशू बाकी नहीं रहता। ये शैतान का फरेब है। दरअसल खुशू नाम है सुन्नत के मुताबिक इबादत करने का। अगर सुन्नत के मुताबिक इबादत कर ली
تو खुशू व खुजू भी हासिल है और उस इबादत का सवाब और नूरानियत व बरकत भी। और अगर खिलाफ सुन्नत तरीक़े पर लाख आहो बुका और खुशू के तरीक़े इख्तियार करें तो शरीयत की नज़र में ये इबादत खुशू और बरकत वाली शुमार नहीं होगी। मजीद इसी किताब में आगे लिखते हैं सफ़ा नंबर 177 पर बाज़ लोग ये कहा करते हैं कि घर में अकेले इबादत करने और नफल पढ़ने से जल्दी नींद आ जाती है, और अगर मस्जिद में इज्तिमाई तरीक़े पर ज़िक्र व नवाफिल में लग जाए, कुछ तकारीर हो और कुछ नवाफिल की जमात वगैरह, तो नींद ख़त्म हो जाती है और इस तरह से बहुत ज़्यादा इबादत की तौफीक हो जाती है। और इसके बरअक्स अगर घर में अकेले इबादत ज़िक्र व नवाफिल वगैरह में लगते तो उसका आधा भी न कर पाते। इस बारे में खूब समझ लें कि अव्वल तो इबादत की कसरत या उसकी मिक़दार व तादाद का ज़्यादा करना असल में शरीयत को मकसूद ही नहीं, बल्कि इबादत की कैफियत और उसके अच्छा व उम्दा होने पर सवाब का दारो मदार है। अगर थोड़ी देर सुन्नत तरीक़े पर इखलास के साथ इबादत कर ली तो ये थोड़ी इबादत उस ज़्यादा देर की इबादत से लाखों दर्जा अच्छी है जो सुन्नत के खिलाफ हो। अब ये आखिरी नोट आपके सामने पेश करता हूँ। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। इस सिलसिले में एक साहब ने दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से इस्तिफ्ता किया कि शब बारात की रात में क्या ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। 30 सवालात उन्होंने किए, 30 सवालात किए और उन्होंने पूछा कि क्या ये काम करना चाहिए। तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो जवाब आया है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुना देता हूं। लिखते हैं 1 से 30 तक में 3 उमूर तो साबित और मुजिब सवाब बरकात हैं। नंबर 1, 15वीं शाबान की रात में अपने अपने घरों में इबादत का एहतमाम करना। लफ्ज सुन लीजिए, जो लोग मस्जिद में जमा होने को लाजिम और ज़रूरी समझते हैं और तरह तरह के हीले बहाने करते हैं कि घर में हम इबादत नहीं कर सकते, नींद आ जाती है, बच्चे वरगला देते हैं, मशगूलियत हो जाती है। जी नहीं, आप थोड़ी ही सी इबादत कीजिए, अपने घर में कीजिए, सुन्नत के मुताबिक कीजिए, जो शरीयत का मिजाज है उसके मुताबिक आप इबादत कीजिए। न ये कि मस्जिदों में एक इज्तिमा की कैफियत बना दी जाए और कुछ का कुछ कर दिया जाए। तो देखिए दारुल उलूम देवबंद के फतवे में लिखा है कि नंबर 1, शब बारात की रात में क्या साबित है। नंबर 1, 15वीं शाबान की रात में अपने अपने घरों में इबादत का एहतमाम करना। नंबर 2, किसी वक्त कब्रिस्तान जाकर ज़ियारत कुबूर करना। अस्हाब कुबूर के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार इसाले सवाब कर देना। ये नफल दर्जे की चीज है, जरूरी नहीं है। इक्का दुक्का का भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा इस रात में कब्रिस्तान गए हैं। लिहाजा बाज़ उलमा लिखते हैं कि अगर इस हदीस पर अमल करने के लिए कोई शख्स पूरी जिंदगी में एक बार चला जाता है तो ये काफी है उसके लिए। और अगर कोई इसको जरूरी समझ ले और हर साल जाने का अपना मामूल बना ले तो जाहिर है कि ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि इनफरादी तौर पर और जो बात मुआज़बत और पाबंदी के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है उसको हमें भी मुआज़बत और पाबंदी के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 3, 15 शाबान के दिन में रोजा रख लेना। ये 3 बातें साबित हैं और मुजिब सवाब बरकत हैं। नंबर 1, 15वीं शाबान की रात में अपने अपने घरों में इबादत का एहतमाम करना। नंबर 2, किसी वक्त कब्रिस्तान जाकर ज़ियारत कुबूर कर लेना, असहाबे कुबूर के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार इसाले सवाब कर देना। और नंबर 3, 15 शाबान के दिन में रोजा रख लेना। ये 3 बातें साबित हैं। आगे लिखते हैं कि इनके अलावा जो उमूर इस्तिफ्ता में लिखे हैं कि ये भी कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, वो बिदात व खुराफात के कबील से हैं और बाज में तो कुफ्र का सख्त अंदेशा है। जैसा कि हजरत शेखैन रजी अल्लाह अन्हुमा का पुतला जलाना और उनसे इजहार बेजारी करना, ये और इन जैसी मलऊन हरकात मुसलमानों से बल्कि अदना दर्जे के अहले इस्लाम से मुस्तबाद हैं। इस शब का नाम शब कद्र नहीं बल्कि लैलतुल बरात है।
वगैरह। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हदीस की रोशनी में, उलमाए किराम के फतावा की रोशनी में, और उनकी तसनीफ़ात व तालीफ़ात और उनकी आरा की रोशनी में। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो इबादत जिस नौइयत के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसी नौइयत के साथ करें और उसी हुक्म के साथ करें। अगर नफल दर्जे की कोई इबादत साबित है तो नफल ही के दर्जे तक उसको रखें। अगर कोई अमल इनफरादी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो इनफरादी तौर पर उस अमल को करें। अगर कोई अमल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हुजूर घर में किया करते थे तो उसको घर में करना चाहिए, न कि मस्जिद का इंतखाब करना चाहिए उसके लिए। और इन सब रातों में तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इबादत ही नहीं की, बावजूद इसके कि आपका हुजरा मस्जिद से करीब था। इसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रह करके इन सब रातों में इबादत किया करते थे इनफरादी तौर पर। और यही शरीयत का मिजाज भी है और यही इन नफल इबादतों का यही मकसद भी है कि आप तन्हाई में गोशा नशी होकर के घर के किसी कोने में बैठ करके 5 मिनट भी अगर आपने अल्लाह से लौ लगा लिया और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया, तो आपकी रात भर की इबादत से अफजल है जो आप मस्जिद में जमा होकर के करते हैं और खिलाफ सुन्नत तरीके पर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।